anti-epileptic drugs. So epilepsy is nothing but the neurological disorder. So there are a lot of neurological disorders like epilepsy is there, muscular dystrophy, then your multiple sclerosis, motor neuron disease, then your ataxia. So there are a lot of neurological disorders. So out of that there is one anti-epileptic. Okay. So we are going to see epilepsy, its type, drug used in the treatment of epilepsy known as anti-convulsant drugs. एपिलिप्सी क्या होता है? एपिलिप्सी मतलब हिंदी में होता है मिर्गी का दौरा. कोई कोई देखा होगा अपने पेशेंट, एपिलिप्सी का पेशेंट आता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है. बाद में उसका मस्कुलर मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब वो मसल उसका स्ट्रेचिंग होगा. वो मिर्गी का दौरा मतलब एपिलिप्सी. Okay. So anticonvulsants are the drug which are used in the treatment of convulsions or epilepsy. Simply. Okay. Now epilepsy is nothing but the collective term for a group of chronic seizure disorders. Seizure मतलब क्या होता है? Okay. Epilepsy is a collective term for a chronic disorder. Chronic disorders having chronic disorder of collective term for a group of chronic seizures. Seizure disorder. Seizure means what? So there is an increased stimulation in the brain. Okay, increased stimulation in the brain and with the loss of consciousness, known as the seizures. So it is a collective term for group of chronic disorders. यहाँ पे क्या, जैसे आपको सीजर आएंगे तो सडनली आपको क्या होगा, सडनली आप अनकॉन्शियस बन जाओगे, सडनली आपका कनेक्शन टूट जाएगा एनवायरमेंट से. बैठे हो आप, बैठे गिर गए आप, अनकॉन्शियस हो गए. So it might be a attack of some kind of seizures in the brain. Okay. Now epilepsy is a collective term for a group of chronic seizures disorder having common sudden and transit episodes. Common हो सकता है या sudden हो सकता है and it is a transit episode. Common sudden transit episodes of seizures. Seizure क्या होता है मैंने बोला. Seizure means what? Due to increased electric stimulus in the brain. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यूरोनल फायरिंग होता है. Neuron extra firing, okay, extra neuronal firing in the brain that leads to excessive stimulation followed by excessive depression. So because of that you lost the consciousness. That is known as seizures. Now it is a collective. Epilepsy क्या है? Collective term for different seizures, chronic seizures. Okay. Now with the loss of disturbances and consciousness, usually this epilepsy is having characteristic body movement. इपिलेप्टिक पेशेंट जो होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट होता है, नोन एज अ कन्वर्जन. कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स नोन एज अ कन्वर्जन्स. इन जनरल इट इज अ एबनॉर्मल न्यूरल फायरिंग. ओके, इट इज अ एबनॉर्मल न्यूरल फायरिंग इन द ब्रेन, डिस्चार्ज इन द ब्रेन. तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स में इम्पल्स कंटिन्यूसली जनरेट होकर कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होगा. सो कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ इम्पल्स एंड कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज देयर, known as a neuronal firing. But why this neuronal firing or why this abnormal impulses are there? There are different reasons for this. So reason क्या क्या हो सकता है? What are the reasons for seizures or epilepsy? So if there is a trauma to your brain, आपको कोई दिमाग में चोट लगी है, so due to that, so if there is a trauma during birth, आप जब पैदा हो रहे थे उस टाइम पे आपको आपके दिमाग में चोट लगी है, ठीक है, किंवा डोक्यावर, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये डोक्यावर पडलाय का, तर कोणी डोक्यावर पडला असेल तर त्याला एपिलेप्सी होतं. इन द चाइल्डहुड इफ देर इज इंजुरी टू युअर हेड, ओके, इफ देर इज अ ट्रॉमा टू योर ब्रेन, इफ देर इज अ हिमेटोमा, ब्लड क्लॉट है आपके ब्रेन में, फिर भी आपको एपिलेप्सी हो सकता है. हिमेटोमा, ओके, इट इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी. विटामिन B1 जो होता है, थायमिन का डिफिशियंसी अगर है तो आपको एपिलेप्सी हो सकता है. जेनेटिक भी होता है ये, इट इज ऑल्सो जेनेटिक. ओके, देन अगेन इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिज्म. ज़्यादा दारू पिया आपने तो एपिलेप्सी हो सकता है. अगेन इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू सम ड्रग्स विच आर नॉन एज अ स्टिमुलेंट. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होते हैं, सीनियर स्टिमुलेंट ड्रग जो होते हैं, हालुसिनोजन जो होते हैं, मॉर्फिन वगैरह, सो दे कैन कॉजेज द एपिलेप्सी. So excessive stimulation of your brain leads to epilepsy. So epilepsy is a collective term for chronic seizures disorder having common sudden and transient episodes of seizures. Seizure means what? Seizure is nothing but the sudden loss of consciousness. It is the episodes of sudden loss of consciousness and recovery. एक बार आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, बाद में फिर से रिकवर हो जाओगे. एंड
अनइंटेंडेड मूवमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल से लिप्स मैचिंग, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ खा नहीं रहे हो लेकिन आप चबा रहे हो फालतू में, आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन पिन रोलिंग मूवमेंट, excessive muscle contraction, that is also a part of seizures because of the excessive stimulation of particular cortical region of your brain. Cortex जो होता है cerebral cortex, cerebrum cortex, okay, so cortical regions in the brain, if they are stimulated, so you know that there are different region, so there are different region in the brain, motor region, sensory area, like that, okay. So if there is a stimulation, excessive stimulation sensory area, so you will get senses, okay. And if there is a excessive stimulation in the motor area, तो motor area में stimulation होगा तो muscle contraction होगा, so okay. So seizures, they may be either, they are either involve only sensory character, or they may involve motor character, so depending on the area stimulated. There are different reasons, as I told you, because of the deficiency of vitamin, because of the excessive alcoholism, because of the trauma to the brain, because of the genetic origin. It may be either genetic. There are different reasons for epilepsy. Now there are types of seizure. Okay, seizures are classified into different types. Types of seizure. Seizure क्या होता है? It is nothing but it is an episode of unconsciousness due to excessive stimulation in the brain at a particular area, cortical area. So due to excessive stimulation of cortical area, and because of that excessive stimulation, your consciousness is lost with or without involvement of muscles or muscular movement. Now, type of seizure and their characteristics. Okay. First is nothing but the primary generalized seizure. So in that you have clonic seizures. It is also known as a grand mal epilepsy. इसको बोलते हैं grand mal epilepsy, or it is known as a major epilepsy. Tonic-clonic seizure, ये क्या है? It is a generalized seizure. So including, okay, so there is a sudden loss of consciousness. यहाँ पे आपका unconscious हो जाओगे, unconsciousness without any warning, followed by generalized tonic and finally clonic movement. यहाँ पे आपका muscle movement होगा, आप बहुत ज़्यादा ताकत आएगी आपके मसल में, खींच लोगे। यहाँ पे क्या होता है कि सडनली सीजर चालू होने के बाद में आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। अनकॉन्शियस हो गए आप तो फिर उसके बाद में आपकी मस्कुलर मूवमेंट चालू होते हैं, तो मसल मूवमेंट मतलब आप इतना खींचोगे आपको कि मतलब आपने देखा होगा इपिलिप्सी का पेशेंट, आई डोंट नो, ये उनके हाथ पैर बांधने पर भी ये पूरा तोड़ देते हैं, जिससे टाइप के वो, सो बेड के ऊपर सब कुछ लात मारेंगे, ये करेंगे, ओके। सो टोनिक मूवमेंट एंड फाइनली क्लोनिक मूवमेंट, दैट इज ओके। सो उसमें एक गैप होता है, पर्टिकुलर एपिसोड, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गया, 2 मिनट एक गैप रहेगा, उसके बाद में फिर से कॉन्ट्रैक्शन, नोन एज अ क्लोनस मूवमेंट, ओके। देन इन दैट यू हैव टंग बाइटिंग, टंग बाइटिंग, खुद का ही जीभ काट लेगा, फ्रॉथिंग मीन्स मुंह में से झाग आ जाएगा, फ्रॉथिंग इन द माउथ, इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन पास कर देगा, इट मे बी ऑब्जर्व, ओके। सो इन द टोनिक क्लोनिक सीजर इट इज नोन एज द ग्रैंड माल एपिलेप्सी और मेजर एपिलेप्सी। देन टोनिक सीजर मीन्स इट इज लाइक अबव ओनली विदाउट क्लोनिक फेज, यहाँ पे क्लोनिक फेज नहीं रहेगा। देन क्लोनिक सीजर विदाउट टोनिक फेज, दैट इज absence seizure, they are known as a petit mal epilepsy। क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको, grand mal epilepsy is known as major epilepsy or it is known as a tonic clonic seizure, okay। absence seizure they are known as a petit mal epilepsy, okay। remember now in the absence seizure what happens, इसमें क्या होता है, sudden cessation of ongoing activity without convulsive movement। यहाँ पे क्या होगा, आप बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, सडनली आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बाद में आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा, सो नोन एज अब्सेंस सीजर। सो टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या है कि टोनिक मूवमेंट होता है, क्लोनस होता है, जर्की मूवमेंट होता है, जर्क होता है, मसल जर्क, उसको बोलते हैं क्लोनस, मसल जर्क होता है टोनिक क्लोनिक में, लेकिन अब्सेंस में ये नहीं होगा, अब्सेंस में सिर्फ अनकॉन्शियसनेस होगा। सो सडन सेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी विदाउट convulsive movement and without loss of postural control भी नहीं हो सकता, मतलब जगह पे आप ऐसे
स्टेट, पोस्चर लॉस भी नहीं हो सकता आपका विदाउट लॉस ऑफ पोस्चर कंट्रोल. फ्लटरिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड क्या होंगे, सडनली आईलिड्स फ्लटरिंग होंगे. सब्जेक्ट विल बी ब्लैंक फॉर अ सेकंड अप टू अ मिनट, स्पेशली ऑकर्स इन द चाइल्डहुड. तो बचपन में ये मैक्सिमम टाइम होता है एब्सेंस सीजर, तो 2 मिनट तक उसको समझ में नहीं आता. सो सडन सेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी without convulsive movement, without loss of postural control, fluttering of eyelids, subject will be blank for a second or up to a minute, and especially it occurs in the childhood, known as the absence seizure. थर्ड टाइप आता है आपका एटोनिक सीजर. एटोनिक सीजर और ड्रॉप अटैक, इसको बोलते हैं ड्रॉप अटैक. एटोनिक, देखो ए मतलब क्या एब्सेंस, टोनिक मतलब क्या मसल टोन. मसल का टोन आपका लॉस हो जाएगा तो आप क्या होगे, गिर पड़ोगे. It is known as a drop attack. Sudden loss of postural tone. Sudden loss of postural tone without tonic and clonic movement. In case of child, अगर बच्चा है तो उसका हेड ड्रॉप हो जाएगा फॉर अ फ्यू सेकंड. ऐसा बच्चा है स्टिल खेल रहा है, अचानक ही उसका सर ड्रॉप होगा, हेड ड्रॉप अटैक. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रॉप अटैक. सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन विदाउट टोनिक एंड क्लोनिक मूवमेंट. And in the child head may drop for a second. Child may drop from floor, वो अगर जहाँ पे खड़ा है वहाँ से नीचे भी गिर सकता है. Then next आता है मायोक्लोनिक सीजर. मायो मीन्स क्या, मसल, क्लोनिक पर्टिकुलर मूवमेंट. मायोक्लोनिक सडन ब्रीफ एंड रिपीटेटिव मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द वन बॉडी पार्ट और होल बॉडी. तो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर पूरे बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नोन इज अ मायोक्लोनिक सीजर. आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो. Next one is a partial seizure. Next one is a partial seizure. So in the partial seizure you have different type: simple partial seizures, complex partial seizures, and secondary generalized seizures. Okay. So first is a simple partial seizure. So different type of motor sensory phenomenon are known as aura. इसमें कभी कभी मोटर होगा या फिर कोई सेंसरी फिनोमेनन होगा, जैसे पिन रोलिंग मोमेंट, लिप स्मैचिंग वगैरह. So motor, for example, recurrent contraction of any body part. एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार, रिकरेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, नोन एज मोटर. देन सेंसरी, फीलिंग ऑफ नमनेस एंड पैरास्थेशिया. सुन पड़ गए आप, फीलिंग ऑफ नमनेस एंड पैरास्थेशिया. साइकिक ड्रीम्स में भी, साइकिक ड्रीम्स आर अनवांटेड सेंस ऑफ फियर और एंगर. साइकिक ड्रीम्स यहाँ पे रहेंगे या फिर आपको अनवांटेड सेंस रहेगा of fear, unwanted sense of fear, आप डर जाओगे, and anger. So aura means episode. It is a phenomenon known as aura. Different type of motor and sensory phenomenon known as aura. So motor phenomenon and sensory phenomenon. मोटर में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा बॉडी पार्ट का. सेंसरी मतलब फीलिंग हुआ, नमनेस, पैरास्थेशिया, एंगर, अनवांटेड ड्रीम्स, साइकिक ड्रीम्स. ओके. So known as a simple partial seizures. Okay. Now next one is a complex partial seizure. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, इसमें होता है अनयूजुअल स्मेल. अनयूजुअल स्मेल, आपको एक अलग तरीके का स्मेल आ जाएगा. सडन इंटेंस इमोशनल फीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग हो जाएगा. सडन आप रो दोगे या फिर सडन आप एंग्री हो जाओगे. फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. आपके सामने क्या चल रहा है उसके साथ में कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा. मोटर एक्टिविटीज सच एज लिप स्मैकिंग है ना, आप फालतू में कर रहे हो दिन भर, लिप स्मैकिंग. स्वेलिंग, कुछ खा नहीं रहे हो लेकिन निकल रहे हो, तो स्वेलिंग. अनकॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ हाईली स्किल्ड एक्टिविटी, मतलब आप अनकॉन्शियस हो लेकिन बहुत ही स्किल्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो. मतलब जैसे सुई में धागा, सुई में धागा ये करना डालना, सुई में धागा डालना, या फिर आप कोई भी ऐसा मतलब डेलिकेट एक्टिविटी वैसा. देन सेकेंडरी जनरलाइज सीजर, दे आर नोन एज कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी और इट इज नोन एज जैक्सोनियन एपिलेप्सी. जैक्सोनियन एपिलेप्सी और कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी और सेकेंडरली जनरलाइज्ड सीजर. शॉर्ट फोकली एंड डेवलप्स इनटू जनरलाइज सीजर. पहले तो ये क्या होता है, सिंपल सीजर होता है, बाद में जनरलाइज सीजर डेवलप होता है. दिस सीजर्स में बी फॉलोड बाय postical neurological deficit, also known as Todd's paralysis.
डैमेज होने के बाद में नर्व को ये हो सकता है सेंट्रल सीजर. These are the types of seizures. Okay. Now anti-epileptic drugs. So they are classified in different types. Drug used in the treatment of epilepsy. So first is nothing but the barbiturates. They are nothing but the derivative of barbituric acids. In that you have different drugs. So they are the derivative of pyridine 2,4,6 trione derivative. Okay. Phenobarbital. Okay. Phenobarbital. Then there are other drugs also. We have barbitol. Secobarbital, methotrexate, phenobarbital example. Then second class था आपका deoxybarbiturates. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Deoxybarbiturates is nothing but the primidone. एग्जाम्पल होता है उसका primidone. एंड रिमेंबर primidone का ही एक्टिव मेटाबोलाइट होता है phenobarbital. Primidone का ही एक्टिव मेटाबोलाइट होता है phenobarbital. Now third category used in the epilepsy known as hydantoin. It is known as a diphenhydrantoin derivative. Hydantoins. So in that you have phenytoin, phosphatoin or phenytoin. So phosphatoin is nothing but it is a prodrug of ester phosphoric acid ester of phenytoin. Phosphatoin. It is a prodrug of phenytoin. Okay. Then third होता है immunostilbene derivative. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So one of the following drug is immunostilbene derivative. Remember carbamazepine is the drug. Immunostilbene derivative. 3. It is a tricyclic ring structure. रहता है इसमें. Immunostilbene derivative. उसका ही एक एक्टिव मेटाबोलाइट रहता है oxcarbazepine. Oxcarbazepine is an active metabolite of carbon. Then succinamides. Another category is there. Next drug is succinamides. So in that you have ethosuxcinamide, methosuxcinamide. They are the calcium channel blockers. नेक्स्ट वन इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव या फिर सिंपली वेल्पोरिक एसिड डेरिवेटिव. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और वेल्पोरिक एसिड डेरिवेटिव. तो सोडियम वेल्पोरेट नोन एज वेल्पोरिक एसिड एंड डाइवेल्पोरिक्स इज द ड्रग. सोडियम वेल्पोरिक एसिड और सोडियम सोल्ट ऑफ वेल्पोरिक एसिड नोन एज सोडियम वेल्पोरेट. इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक. मतलब इट इज़ यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी पर्टिकुलरली इन पार्शियल सीजर्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक होता है वेल्पोरेट. ठीक है. कुछ चीज़ें आपको लिख के भी लेना है. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ कीर्तन में आए बैठे हो आप, मैं कुछ बोल रहा हो आप सुन रहे हो मस्त मज़ा लेके लेके, ऐसा नहीं करना है. आप कुछ लिखना है. मैंने जो बोला है वो लिखना है. ठीक है. फॉस्फेटोइन क्या है, ईस्टर है, तो अपना लिख लेना है वहाँ पे ईस्टर फॉस्फेटोइन. Phosphatoin is a ester derivative of phenytoin. मतलब क्या है, इट इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ phosphatoin is a phenytoin. क्यों बना है एस्टर, उसके रीज़न होते हैं क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स अल्टर करने के लिए अपन प्रोड्रग बनाते हैं. जैसे मैंने बोला प्राइमिडोन उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फेनोबार्बिटॉन. आपने लिख लेना चाहिए कि प्राइमिडोन इज कन्वर्टेड टू फेनोबार्बिटॉन. तो आप लिखते नहीं हाइडेंटोइन डेरिवेटिव. बार्बिट्रेट का मैंने बोला है इट इज़ pyridine 2,4,6 trione. तो आप लिख लेना चाहिए कि इट इज नोन एज बार्बिट्रिक एसिड. ठीक है. पर आप लिखते नहीं वो, बाद में आपको बोलेंगे सर आपने बोला ही नहीं, पढ़ाया नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट होता है आपका बेंजोडाइजेपिन्स. इसमें बेंजोडाइजेपिन रिंग रहेगा. ओके. इन दैट क्लोनाजेपाम इज देयर, डाइजेपाम इज देयर, लोराजेपाम इज देयर, क्लोबाजाम, लोराजेपाम, डाइजेपाम, क्लोनाज. देन फिनाइल ट्रायाजिन डेरिवेटिव. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. फिनाइल ट्रायाजिन डेरिवेटिव नोन एज लैमोट्रिग्निन. And remember this is again a broad spectrum anti-epileptic drug. ये भी broad spectrum होगा lamotrigine. Next category is cyclic GABA analog. Cyclic gamma aminobutyric acid analog. So इसका example है gabapentin and pregabalin. They are the GABA analog. ठीक है. GABA analog. दूसरा एक SI drug है आपका vigabatrin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. It is known as a GABA transaminase inhibitor. लास्ट कैटेगरी आपका न्यूअर ड्रग. इसमें आएगा टोपिरामेट, सोनिसामाइड, देन लिवेट्रास्टम. तो और एक याद रखो, लिवेट्रास्टम इज नथिंग बट लिवेट्रास्टम इज अगेन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग. एंड लिवेट्रास्टम इज अ ड्रग रिलेटेड टू न्यूट्रोपिक ड्रग नोन एज अ पिरास्टम. न्यूट्रोपिक मतलब क्या, आपका नर्वस सिस्टम को एनहांस करने वाला. So which will increase your motor coordination, which will increase your, so like that.
पिरास्टम जो न्यूट्रोपिक ड्रग उसके रिलेटेड होता है लिवेट्राइस्टम, देन योर लेमोट्रिग्निन, सोडियम वैल्पोरेट. These three drugs are known as a broad spectrum anti-epileptic drug. And tiagabine is there, vigabatrin is there, gabapentin is there, locosamide. These are the drugs used in the treatment of epilepsy. Now you can see over here different drugs act at a different position. कौन से ड्रग कहाँ पे एक्ट हो गए. ओके, सो नाउ फर्स्ट इन द न्यूरॉन. ये क्या है, न्यूरॉन है. इन द न्यूरॉन gamma aminobutyric acid is synthesized. GABA is synthesized from glutamate. ग्लूटामेट अमीनो एसिड होता है, उससे GABA बनता है. ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है. वो क्या करता है, इट विल कन्वर्ट ग्लूटामेट इनटू GABA. GABA is nothing but the inhibitory neurotransmitter in the brain. So epilepsy is because of the decrease in the inhibitory neurotransmitter in the brain and increase in the excitatory neurotransmitter in the brain. इसका एक रीज़न ये भी होता है. बाकी रीज़न भी होते हैं जैसे मैंने बोला है आपको, है ना. सो ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू GABA बाय ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज इन द न्यूरॉन. नाउ GABA is released in the neuron as a neurotransmitter. Released GABA. Some part of GABA is uptaken. Some part of GABA is reuptaken into the synaptic vesicle. Okay? GABA is released, it will act on its receptor known as GABA A receptor, GABA B receptor. Okay? Now some part of this GABA is metabolized by GABA transaminase inactive. Now आपको हो क्या रहा है यहाँ पे. सो ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड टू GABA by glutamic acid decarboxylase. This GABA is released. GABA released will act on its receptor, postsynaptic receptor GABA A and GABA B. It increases the chloride ion channel opening and suppresses the neuron. Right. Some part of GABA is reuptaken or it is reuptaken by presynaptic neuron. Okay. Then some amount of GABA is metabolized by GABA transaminase into inactive. Now अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाना है आपको. इपिलेप्सी में क्या हो रहा है कि एक्साइटेशन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, एक्साइटेशन हो रहा है न्यूरॉन में. क्यों हो रहा है उसके रीज़न मैंने बोले, जैसे इंजरी हो गया आपके ब्रेन को, या फिर आपके ब्रेन में ट्यूमर है, या फिर आपके ब्रेन में हीमेटोमा है. ठीक है, या फिर जेनेटिकली भी हो सकता है ये, या फिर अल्कोहलिक हो आप पेशेंट, या फिर आप में विटामिन का डिफिशियंसी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का. दीज आर द रीजन्स फॉर इपिलेप्सी. ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ पे देर इज ए कंटिन्यूस न्यूरल फायरिंग. न्यूरॉन का एक्साइटेशन लेवल बढ़ रहा है, न्यूरॉन कंटिन्यूसली एक्साइट हो रहा है. ठीक है, एंड वो एक्साइटेशन ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन एरिया टू नियर बाई एरिया. बाद में पूरा एरिया में फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर. तो आपको व्हाट शुड बी योर एम. तो आपका ब्रेन ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है. ठीक है, देर इज ए एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी, एक्सेसिव न्यूरल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द न्यूरॉन. What you have to do, you have to depress that your brain. इपिलेप्सी क्यों हो रहा है, ज़्यादा स्टिमुलेशन की वजह से, तो आपको डिप्रेस करना है. डिप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो. सो GABA is nothing but the inhibitory neurotransmitter in the brain. So decrease the level of GABA is related with the epilepsy. अगर GABA कम हुआ है तो इपिलेप्सी हो सकता है. सो GABA को बढ़ाना है. और हाउ यू कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ GABA. देखो GABA सिंथेसाइज कैसे होता है, ग्लूटामेट से. आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं आपको. So how there is synthesis of GABA? So GABA is synthesized in the neuronal membrane from the glutamate. Glutamic acid जो होता है, so glutamic acid decarboxylase will convert glutamic acid into GABA. That will be released. Some part of GABA will, okay, after release it will act on its GABA A receptor and GABA B receptor. Some part of GABA will be reuptaken into the neuronal membrane. Okay, and some part of GABA is metabolized. Now this is how normal physiology is there. ये तो normal physiology. In the epilepsy, you know that there is excessive stimulation and you want to control the stimulation, you want to depress your CNS. How can you depress? So your ultimate aim should be increase in the GABA level. यहाँ पे GABA level का बढ़ाना है आपको. So if you increase the GABA level over here in the center, so what will happen? GABA will act on its receptor, it will open the chloride channel and it will depress the CNS, right? तो आपको ये एम होना चाहिए. तो आपका एम क्या होना चाहिए कि GABA को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कैसे भी करके. कैसे कैसे बढ़ा सकते हो GABA का कॉन्सेंट्रेशन आप, तो देखो यहाँ पे यू कैन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ GABA. यू कैन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ GABA बाय गिविंग इट्स प्रिकर्सर. ग्लूटामिक एसिड दे दो या फिर उसका प्रिकर्सर दे दो. ठीक है, एक तो ये होगा.
दूसरा, यू कैन स्टिमुलेट दिस ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। इसको स्टिमुलेट किया तो ये क्या करेगा, ग्लूटामेट को गाबा में बना देगा, ज़्यादा गाबा बन जाएगा, ज़्यादा गाबा बना तो ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज होगा तो डिप्रेस होगा ना सीनेस। सो वैल्पोरिक एसिड इज हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो गाबा का सिंथेसिस, गाबा का सिंथेसिस कौन बढ़ता है, वैल्पोरेट। ओके, देन नाउ दिस गाबा इज नथिंग बट द गामा मोनोपिट्रिक एसिड। गाबा एनालॉग कौन है, गाबा एनालॉग, गाबा पेंटिन एंड प्रीगाबालिन। एनालॉग मतलब क्या, ये गाबा जैसे ही गामा मोनोपिट्रिक एसिड के जैसा ही स्ट्रक्चर है इनका, दे आर द गाबा एनालॉग। तो इंस्टेड ऑफ गाबा ये भी देंगे तो गाबा वहाँ पे ज़्यादा रह जाएगा। सो प्रीगाबालिन एंड गाबा पेंटिन दे आर द गाबा एनालॉग्स, राइट। तो ये गाबा का लेवल बढ़ाएंगे। देन उसके बाद में आप देखो यहाँ पे जो रीअपटेक होता है गाबा का, सो गाबा इज रीअपटेकन इनटू न्यूरॉन, न्यूरॉन में रीअपटेक हो रहा है। So you can inhibit that reuptake. For example, tiagabin inhibit the reuptake of GABA in the presynaptic neuron. So GABA level यहाँ पे बढ़ने का ट्राई करेगा, बढ़ाने का करता है। So inhibition of reuptake of GABA by tiagabin. Then again GABA is metabolized into inactive form by this GABA transaminase. तो उसको इनहिबिट करने वाला ड्रग कौन है, विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन इज GABA transaminase. Okay. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, विगाबैट्रिन इज गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर। उसमें वेल्पोरेट भी आता है, वेल्पोरेट भी गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया समझने के लिए, ठीक है। देन बार्बिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन्स, हाउ दे विल एक्ट। बार्बिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन्स, यू नो दैट दे आर नथिंग द गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। सो दे विल increase the action of GABA at a GABA A receptor, and that will increase the chloride ion channels and will depress the CNS. So this is the mechanism of action of different drug acting on a drug used in the epilepsy. आपको हो चुका है एपिलेप्सी कॉलेज में, झालंय का रे तुम्हाला ये चॅप्टर हो चुका आहे आपको या नाही, यस एनीबडी, झालंय तुम्हाला, समजलं तुम्हाला, हे सगळं शिकवलंय तुम्हाला, हे शिकवलंय तुम्हाला असं सगळं प्रॉपरली। तर क्वेश्चन तुम्हाला अशाच प्रकारे येतो, ठीक आहे। ओके, मेकॅनिझम ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एक्शंस। सो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, तो ये मेजरली ये मैकेनिज्म होते हैं, कौन से ये। सो फर्स्ट, ओके, यू हैव टू डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। आपको फाइनली न्यूरॉन का एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज करना है। यू नो दैट न्यूरनल मेम्ब्रेन जो, सो दिस इज न्यूरनल मेम्ब्रेन, यू कैन सी ये न्यूरनल मेम्ब्रेन है। सो ऑन द न्यूरनल मेम्ब्रेन देर आर सोडियम चैनल्स, देर आर सोडियम चैनल्स, ये सोडियम चैनल है, ठीक है, सोडियम चैनल। ओके, so during the excitation sodium will go inside the cell, it will cause depolarization, there is excitation, okay, and in the two excitation process, दो बार excitation हो रहा है तो उसके बीच में जो टाइम है उसको बोलते हैं refractory period. So during the two excitation, so एक बार अंदर गया excitation हो गया, okay, तो बाद में फिर से अंदर जाएगा ना, तो उस टाइम में जो गैप है उसको बोलते हैं refractory period. Okay, now some drugs they prolongs the sodium channel inactivation. तो सोडियम अंदर जाएगा, डिपोलरेशन होगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसमें टाइम है। बाद में फिर से जब सोडियम अंदर जाएगा तो उसमें जो टाइम है उसको बोलेंगे इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन टाइम। उस टाइम पे ये सोडियम चैनल जो है ना क्लोज रहेगा, मतलब एक बार सोडियम अंदर गया तो ये क्लोज हो जाएगा, वो सोडियम हाइपर डिपोलराइज करेगा और बाद में वहाँ से एक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब दूसरा सोडियम अंदर आने तक जो है ना वो क्लोज रहेगा, सो ये क्लोजिंग टाइम जो है ना वो बढ़ा देते हैं। कौन सा ड्रग, सो फ्यू ड्रग्स दे प्रोलॉन्ग्स द सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। फॉर एग्जांपल फिनिटोइन, सो फिनिटोइन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, कार्बामाइजेपिन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, वेल्पोरेट इज ऑल्सो सोडियम चैनल ब्लॉकर, लैमोट्रिग्निन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, ओके, देन लेकोसामाइड। सो ऑल दीज ड्रग्स दे आर अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। दे विल इंक्रीजेज द इनएक्टिवेशन टाइम ऑफ दिस सोडियम चैनल बाय बाइंडिंग टू ए सोडियम चैनल, they inactivate the sodium channels, they will prolong the inactivation time. inactivation time ज़्यादा दिन तक रखेंगे, एक्टिवेट नहीं होगा, इनएक्टिवेशन टाइम ज़्यादा होगा तो एक्टिवेट ही नहीं होगा ना जल्दी, तो न्यूरनल फायरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दीज आर द ड्रग विच, ओके, रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे का और यही पे हो जाएंगे आपके।
So these are the drug: phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, zonisamide and leucosamide. They prolongs the सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन. ते इनएक्टिवेशन कितनी देर तक रहेगा? देखो, एक्टिवेशन मतलब सोडियम में अंदर जाएगा, डिपोलेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए रिसेस सोडियम में अंदर जाना चाहिए ना. तो ये दोनों का दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो पीरियड होता है वो इनएक्टिवेशन पीरियड होता है. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके. एंड वो पीरियड बढ़ा देंगे बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल. कौन बढ़ाता है? फिनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वैल्प्रोएट, लैमोट्रिग्निन, टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, लौकोसामाइड. So they are known as a sodium channel blocker. They prolongs the sodium channel inactivation. वो देर तक इनएक्टिवेट रहने देंगे सोडियम चैनल को, एक्टिवेट नहीं होने. ठीक है. देन ओके, सेकंड, सो गाबा के बारे में अपन ने पूरा डिटेल में देख लिया. फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड ओपनिंग बाय बारबिचुरेट्स. तो बारबिचुरेट जो है वो गाबा का एगोनिस्ट होता है. बेंजोडाइजिपिन क्या होता है? गाबा एगोनिस्ट होता है. विगाबैट्रिन क्या करता है? गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है. सो इट विल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ गाबा. सो गाबा लेवल विल बी इंक्रीज्ड. वेलप्रोएट इज अगेन इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ गाबा बाय स्टिमुलेटिंग द ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम. गाबापेंटिन इज गाबा प्रिकर्सर. अगेन गाबा प्रिकर्सर. सो ये गाबा के ऊपर एक्ट होने वाले ड्रग है. Now third category of drug, there are certain drugs which inhibit the T type of calcium current. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. Inhibit the T type of calcium current. तो ऐसा नहीं कि ओके, सो सोडियम अंदर जाने के बाद ही डिपोलेशन होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम के रीजन से होता है, बट कैल्शियम इज ऑल्सो देयर कैटायन. कैल्शियम इज ऑल्सो कैटायन. सो इट विल ऑल्सो एंटर्स इन द सेल एंड causes depolation and generation of action potential, particularly in the absence seizure. So these drugs are effective in the absence seizure. Okay, absence seizure. So L type of T current, okay, inhibition of T type of calcium current, it is done by ethosuximide, then valproate and zonisamide. अभी देखो इसमें valproate यहाँ पे भी आ गया, valproate यहाँ पे भी है, valproate यहाँ पे भी है. So valproate GABA transaminase inhibitor भी है. So valproate acts by 4-5 different mechanism. Valproic acid sodium valproate acts by 4-5 different mechanism. And there was a question in GPAT 2022 regarding this. So sodium valproate acts by following mechanism except, और नीचे 5 mechanism दिए थे. तो याद रखना है आपको सोडियम. ओके, this valproate is sodium channel blocker also. It increases the concentration of GABA. ये एक ऑप्शन था. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा ना क्योंकि सिंथेसिस बढ़ता है. ओके, देन इट आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम टी करंट. इट इज आल्सो गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर. और एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था. मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग क्यों बोलते हैं उसको? व्हाई इट इज नोन एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम? बिकॉज इट इज यूजफुल इन द टोनिक क्लोनिक सीजर, इट इज यूजफुल इन द absence seizure, it is useful in the partial seizures, like that. ओके, सो याद रखना है आपको. सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन है? फिनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वैल्प्रोएट, लैमोट्रिग्निन, टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, लौकोसामाइड. गाबा इन आंसर कौन है? गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन. विगाबैट्रिन क्या है? ओके, विगाबैट्रिन. गाबापेंटिन क्या है? विगाबैट्रिन गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर. गाबापेंटिन टियागापिन क्या है? गाबा एनालॉग्स है. ठीक है. देन वैल्प्रोएट गाबा का प्रोडक्शन बढ़ाएगा. ओके, कैल्शियम टी करंट. ओके, कैल्शियम टी करंट इनहिबिट कौन करते हैं? इथोसक्सिमाइड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2021 में. विच ड्रग इनहिबिट द कैल्शियम टी करंट? इथोसक्सिमाइड. वैल्प्रोएट इज आल्सो देयर. जोनिसामाइड इज आल्सो देयर. यू हैव टू रिमेंबर. सो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एक्शन. ओके, एक्टिवेशन ऑफ गेट. एक्टिवेशन तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर से. इनएक्टिवेशन ऑफ गेट ये गाबा वाले, गाबा ट्रांसअमाइनेज, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एल्डिहाइड, ये से. ये सिंथेसिस स्टोरेज अपने ऑलरेडी देखा. यहाँ पे देखो गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर कौन है? यहाँ पे दिया है विगाबैट्रिन एंड वैल्प्रोएट. गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर कौन? क्योंकि देखो गाबा कहाँ से बनता है? आपका ग्लूटामेट से बनता है. ग्लूटामेट से गाबा बनेगा, गाबा रिलीज होगा, गाबा रिलीज होकर गाबा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा. तो गाबा का कुछ पार्ट क्या होता है? रीअपटेक होता है. जैसे बोला है मैंने, गाबा रीअपटेक. रीअपटेक कौन इनहिबिट करता है? टियागापिन. गाबा रीअपटेक इनहिबिटर टियागापिन.
देन गाबा ट्रांसअमाइनेज क्या है करता है, मेटाबॉलिज्म करता है. सम पार्ट ऑफ गाबा इज मेटाबॉलाइज्ड बाय GABA transaminase, so that is inhibited by vigabatrin and valproate. Then barbiturates, they are nothing but they binds with the alpha, okay, they binds with the alpha subunit of GABA receptor and increases the duration of chloride channel opening. Benzodiazepine also binds with the alpha subunit of GABA receptor, they increases the frequency of chloride ion channel opening. So ये सभी ड्रग का एक ही, दो ही, तीन ही डायग्राम में आपका सबका मैकेनिज्म बोल दिया. बचता क्या है, काइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट एंड ऑल दैट. फिर भी अपन ये पूरा और दे लेंगे, ठीक है. डोंट. सो अगेन एक बार यहाँ पे देख लो, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सो दे प्रोलॉन्ग द सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन. सम ड्रग्स विल prevent the prolongation of sodium channel, okay, prolongs the sodium channel inactivation, okay, जैसे पिनेटोइन वगैरह, कार्बामाइजेपिन, पिनेटोइन वगैरह, वाल्प्रोएट. hello. Then some drugs will interact with the GABA. Either they will increase the amount of GABA, or they will increase in the synthesis of GABA, or they will act as a GABA agonist like barbiturates, benzodiazepines. Some drug will prevent the reuptake of GABA. Some drug will prevent the metabolism of GABA. Ultimate aim is nothing but to increase more GABA at a time. Okay. Then some drugs they will block the calcium T current. जैसे इथोसक्सेमाइड, जोनिसमाइड वगैरह, इथोसक्सेमाइड, जोनिसमाइड. we'll see the individual drugs. So phenytoin, first is nothing but the phenytoin, so it is known as a hydantoin derivative. ये मालूम होना चाहिए आपको, hydantoin derivative होता है. hydantoin क्या होता है अपन देख लेंगे. it is nothing but the imidazole 2,4-diene, imidazole 2,4-diene known as a hydantoin. Mechanism of action. So what is they cause the dose dependent block to the sodium channel. So they reduces the neuronal sodium concentration, that is the main mechanism. Also they affect the voltage dependent sodium channel and causes the stabilization of neuronal membrane, and this stabilization effect is also useful in the arrhythmia, cardiac arrhythmia में इसका use होता है. It is a type 1 drug, class 1A drug used in the cardiac arrhythmia. Also augments the level of GABA, 5-HT and homovalenic acid. देखो फिनेटोइन का मैकेनिज्म 3 है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करते हो, एक ही याद रखते हो, सोडियम चैनल ब्लॉकर बस. सो इट ब्लॉक्स द डोज डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल, पहला मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी इपिलेप्टिक इफेक्ट. देन आल्सो it affect the voltage dependent sodium ion channel, it causes the stabilization of neuronal membrane. Second, and also augments मतलब क्या, augments increases the level of GABA, 5-HT and homovalenic acid. याद रखना है मैकेनिज्म. समझ में आया क्या, मैकेनिज्म समझ में आया क्या, यस और नो. देन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है इसकी, देखो. So in the CNS it has a selective anti-epileptic action without causing drowsiness. ये क्या करेगा, CNS को डिप्रेस करता है, लेकिन आपको ड्राउजीनेस नहीं करेगा. रिक्वायर्ड अमाउंट में ये CNS को डिप्रेस करेगा. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट. सो इट इज यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग. एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, बहुत सारा है इसमें, डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारा है, लेकिन ज़रूरत नहीं उतना. सो इट इज़ एब्सॉर्ब फ्रॉम द GIT slowly, it is not completely absorbed, it is a water insoluble drug, and that's why it is incompletely absorbed. It is a 90%, around 70 to 90%, it is bound to a protein. It is metabolized by para-hydroxylation. Para position पे hydroxylation ऐड होगा. High dose, in a high dose it exhibit dose dependent, that is zero order kinetics. So in a low dose it follows the first order kinetic, in a high dose it follows the zero order kinetics. Then it is a hepatic microsomal enzyme inducer, enzyme को भी इंड्यूस करता है. Adverse reaction are very 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 important, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. So intolerance, drug will not be tolerated on a body. So urticaria, scarletiniform, okay, measles-like skin rashes. CNS के ऊपर mild toxicity, constant ड्राउजीनेस,
सीनेस के ऊपर माइल्ड टॉक्सिटी होता है, ड्राउजनेस करेगा आपको लिटिल बिट, फटीग, हेडेक करेगा, कन्फ्यूजन करेगा. इन हाई डोज इट कैन कॉज वेस्टिबुलर सेरेबुलर सिंड्रोम, दैट इज अ वर्टिगो, चक्कर आएगा आपको, अटैक्सिया, ऑक्यूलर पेन, आपके बर्निंग रीजन हो जाएगा, डिल्यूजन्स मतलब आपको डिल्यूजन हो जाएगा, हेलुसिनेशन कर सकता है, साइकिक एपिसोड भी आ सकते हैं आपको. देन फेस एंड गम्स, it causes the hyperplasia and hypertrophy of gums and edema, inflammation of gums. आपका जो ये दांत का गम होता है उसका ये करेगा hyperplasia, hypertrophy. Okay, it is known as a gingival hyperplasia. क्वेश्चन आ चुका है, gingival hyperplasia is the adverse effect of obviously phenytoin. Okay, gingival hyperplasia. लॉन्ग टर्म यूज causes the hypertrophy of facial subcutaneous. लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करेंगे इसको तो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू में ना वो हाइपरप्लासिया कर देगा, वहाँ पे सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, दैट इज नोन एज अ फिनेटोइन फेसिस. ओके, हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस मतलब क्या, आपका बाल बढ़ देगा, हाइपरट्राइकोसिस. इफ इट इज यूज इन द फीमेल, फीमेल में यूज़ किया तो फीमेल की दाढ़ी आती है, दाढ़ी मूँछ आ जाएगी. हाइपरट्राइकोसिस इन द चिल्ड्रंस एंड फीमेल. इनिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, ये क्या करता है, हाइपर ग्लाइसीमिया करता है. इट इनिबिट द इंसुलिन सिक्रेशन एंड क्या करेगा फिर, हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है, सो इट इज अ टेराटोजेनिक इन नेचर, टेराटोजेनिसिटी. फेटल आइडेंटोइन सिंड्रोम, अगर प्रेग्नेंट वुमन में यूज़ किया तो फेटल आइडेंटोइन सिंड्रोम. ओके, कॉजेज द हाइपोप्लासिया टोसिस, वाइड माउथ, आपका जो फेलेंजेस होता है, फेलेंजेस वो हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस करेगा. इनर इपिकैंथिक फोल्ड, शॉर्ट नेक. देखो कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, पूरा जो नेक है ना ये एकदम छोटा होता है, शॉर्ट नेक, दैट इज टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन. देन माइल्ड वेडिंग ऑफ नेक, शॉर्ट फेलेंजेस, हाइपोप्लास्टिक नेल, आपका जो नेल्स है ना वो पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हाइपोप्लास्टिक. सो देर आर लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, याद रखो, एडवर्स इफेक्ट बहुत है. सो इट कॉजेज द ataxia, drowsiness, okay, psychic syndrome, psychic episodes, hallucination, delusion, okay, then blurring of vision, diplopia. diplopia मतलब डबल विजन. ठीक है, यहाँ पे डिप्लोपिया मतलब डबल विजन है ना, आपने 2-3 पैक मार लेते, एक आदमी 2 दिखते हैं आपको, वैसे ही डिप्लोपिया मतलब डबल विजन. ठीक है, बर्निंग ऑफ विजन, ऑक्यूलर पेन, आपकी आंखों में दर्द होगा. फेस एंड गम हाइपरट्रॉफी, फेस एंड गम के ऊपर हाइपरट्रॉफी होता है, सो नोन एज अ जिंजिवियल हाइपरप्लासिया. क्वेश्चन आ चुका है, जिंजिवियल हाइपरप्लासिया इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन. एंडोक्राइन इफेक्ट मतलब क्या, इट इंक्रीजेस द, ओके, हाइपरट्राइकोसिस, इट कॉजेज द हाइपरट्राइकोसिस, इसको बोलते हैं अपने विरिलिज्म. इट कॉजेज द विरिलिज्म इन द फीमेल्स. तो फिनेटोइन क्या करता है, बाल बढ़ा देता है. मतलब नॉर्मली बाल लेडीज़ के तो बाल घने होने चाहिए, लेकिन फेस के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए. तो ये क्या करेगा, दाढ़ी मूँछ ला देगा. ठीक है, इट इनिबिट द इंसुलिन सिक्रेशन एंड दैट्स व्हाई कॉजेज द हाइपरग्लाइसेमिया. टेराटोजेनिक होता है. थेरेप्यूटिक यूज क्या है उसका, ग्रैंड माल इपिलेप्सी, साइकोमोटर सीजर्स, फोकल कॉर्टिकल इपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, बोलता हूँ स्टेटस एपिलेप्टिकस. जैसे एपिलेप्सी में क्या होता है, देयर इज अ कंटिन्यूअस फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, सो ड्यू टू दैट देयर इज अ एक्साइटेशन, देयर इज अ सेंसरी एलिमेंट इज देयर एंड मोटर एलिमेंट इज देयर. बट इन द 2 अटैक ऑफ एपिलेप्सी में 2 अटैक आएगा, एक अटैक आएगा, बीच में एक टाइम मिलेगा आपको, बीच में क्या होगा, एक टाइम मिलेगा, एक 2 मिनट 3 मिनट, आप अनकॉन्शियस में हो जाओगे, आप सो जाओगे. उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में अटैक आएगा. सो एपिलेप्टिक अटैक के बाद बीच में जो पीरियड होता है वो एक रहता है नॉर्मल एपिलेप्टिक. स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, सो इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस अटैक ऑफ एपिलेप्सी, देयर इज नो रिकवरी बिटवीन 2 अटैक. So if there is a continuous firing of neuron, if there is no recovery between 2 attack, known as a status epilepticus, it is very dangerous condition. The patient may die. So immediately in the status epilepticus, phenobarbital is given or diazepam is given. Okay, in the status epilepticus, diazepam is a drug of choice in the status epilepticus.
So again, it is used in the cardiac arrhythmia, phenytoin. Okay, cardiac arrhythmia. It is contraindicated in the patient with 3 and 4th degree of heart block. इसका हार्ट ब्लॉक है, उसमें नहीं यूज़ करना है. यानी इसका एक डेरिवेटिव होता है फॉस्फेंटोइन. ओके, फॉस्फेंटोइन. So it is a prodrug of phenytoin. Okay, similar action like phenytoin but less adverse effect होता है उसको. Are you getting or not? समझ रहा है क्या? So remaining points will take in a next session.